Hello friends, welcome to our channel. Myself Mahesh Hinduja. Today we are going to discuss maths for standard 8th and the chapter is chapter number 11, that is mensuration. Now before we start this chapter, we will go back to previous class where we have learned some formulas. Okay, I have noted down them in a piece of paper. Okay, now see, these are the formulas which we have learned earlier also. That is area of square, that is side square, means side into side. This we have learned in the lower classes. Then area of rectangle, that is length multiplied by breadth. Perimeter of square, that is 4 multiplied by side. Perimeter of rectangle, it will be 2 into bracket length plus breadth. These four formulas which we have learnt earlier, today also we are going to use them. Okay, there are two more formulas which we have to focus for this exercise. Area of circle, that is pi r square. Okay, circumference of circle, if radius is given we will use 2 pi r, and circumference of circle pi d if diameter is given. With the help of these formulas, today we are going to start chapter 11 mensuration, exercise number 11.1. So we will start with exercise 11.1. This is the first question of your textbook. A square and a rectangle filled with measurement as given in the figure have same perimeter. Now two figures are given is here. This one is square and this one is rectangle. Okay, now they both have same perimeter and we have to find that which field has a larger area. So students, as we have learnt in lower classes, two figures are given over here, square and rectangle, and if we have to find the perimeter, to find perimeter of rectangle, we require two things, length and breadth. But here only one unit is given over here. To find the perimeter of square, we require only side. तो हम सबसे पहले perimeter of square ढूंढेंगे. The formula given over here is 4 multiplied by side. तो इसका side कितना है? 60. So 4 multiplied by 60, 6 4s are 24, so 240 मीटर. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि measurement as given in the figure have same perimeter, means both the figures have same perimeter. So we will write perimeter of square is equal to perimeter of rectangle, and this is given in the question. Okay, तो perimeter of rectangle क्या होगा? जो हमने perimeter of square निकाला वो, that is 240. So perimeter of rectangle, it will be 240. अब फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, वो हम यहां पर लिखेंगे. सो 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, और उसकी वैल्यू कितनी है? 240. तो वो हम यहां लिखेंगे. ओके, अब 80 मीटर दिया हुआ है तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट 80 प्लस बी. डोंट फॉरगेट टू कीप द साइन ऑफ देयरफॉर इक्वल्स टू 240. ये यहां मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम यहां शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा. सो दिस विल बी 240 डिवाइड बाय 2. देयरफॉर 80 प्लस ब्रेथ 240 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0. अभी 80 यहां एडिशन में है, इसको हम वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ब्रेथ कितना होगा? 120 माइनस 80. सो ब्रेथ विल बी 40 मीटर. ओके, तो लेंथ और ब्रेथ आ गया.
अब ये पूछा गया है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं कि साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइड स्क्वायर, या तो साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो साइड की वैल्यू कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 0 विल कीप 2 0, और एरिया की साइन हमेशा स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट टू पुट अ स्क्वायर ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जिसकी फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना है 80 और ब्रेथ हमने अभी ढूंढा दैट इज 40। सो इट विल बी 80 मीटर लिखना नहीं भूलना, मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर। 8 4 जा 32, 2 0 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसकी एरिया ज्यादा है, क्वेश्चन में पूछा है, देखो विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो किसकी एरिया ज्यादा है, therefore square field has a larger area, has a larger area. So question number 1 gets over here. So moving ahead to question number 2. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. The measurement is given. The plot is 25 by 25. This is the area. So it is a square plot. Okay. She wants to construct a house in the middle of the plot. This we have already drawn the figure. This is the house. A garden is developed around the house. Whatever the space is remaining, जितनी भी खाली जगह बचती है वहां पर हमें क्या बनाना है, गार्डन बनाना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। तो यही जो गार्डन बनेगा हमें इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा और फिर दिए हुए कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्लॉट की एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट। अभी जैसे आप देख सकते हैं 25 बाय 25 लिखा है, मतलब ये स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ प्लॉट की फॉर्मूला क्या होगी, साइड स्क्वायर, या तो आप साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। सो 25 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर याद करो, 25 का स्क्वायर, सो इट विल बी 625 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हाउस निकालेंगे, एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस। अभी हाउस आप देख पा रहे, देखो यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 20 है, मतलब दिस इज इन अ रेक्टेंगल शेप। तो इसकी एरिया होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो इट विल बी 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर। 15 2 जा 30, ओके, सो 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि प्लॉट हमारा इतना है, उसमें से हमारा घर इतना बचेगा, बाकी जो जगह बचेगी उसमें हम गार्डन बनाएंगे। सो एरिया ऑफ गार्डन, सो इट विल बी एरिया ऑफ प्लॉट दैट इज 625 माइनस एरिया ऑफ हाउस दैट इज 300, और यूनिट लगाना नहीं भूलना, दैट इज मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी 325 मीटर स्क्वायर। अभी और पूछा है कि फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, इट विल बी 325 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितना दिया हुआ है 55, ओके।
So cost of developing the garden, it will be 325 meters square multiplied by 55. Okay. So if you multiply it, you will get rupees 17875. Therefore, cost of developing garden is rupees 17875. Now moving ahead to next question, question number 3. The shape of a garden is rectangular in the middle. This one is a rectangular shape. This one is a rectangular shape. And semicircular at the end. Okay, here it is curved shape, semicircular shape. Find the area and perimeter of this garden. We have to find both the area as well as the perimeter. So here we go. शुरू करते हैं सॉल्यूशन से इसके. तो सबसे पहले हम एरिया ढूंढते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको दो चीज चाहिए. एक तो आपको लेंथ चाहिए और एक तो आपको ब्रेथ चाहिए. ब्रेथ तो यहाँ पे दिया हुआ है 7. ठीक है, लेकिन लेंथ हमें ढूंढना है. तो पहले हम इधर लेंथ ढूंढ लेते हैं. ठीक है. अभी देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 20 है. अच्छा, अगर ये सेमी सर्कल है, अगर ये फिगर सेमी सर्कल है, तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज हो गई डायामीटर. ठीक है. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 7. तो डायामीटर अगर 7 है तो ये रेडियस हो गया. ठीक है. और रेडियस अगर हमें ढूंढना है तो क्या करते हैं? डायामीटर डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3.5. उस हिसाब से ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 3.5. ठीक है. तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने के लिए 20 में से क्या माइनस करेंगे? 3.5 ये वाला और 3.5 ये वाला. दैट इज 3.5 प्लस 3.5. सो 20 माइनस 7 दैट इज 13 मीटर. ठीक है. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है. सो इट विल बी 13 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर. ओके. सो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इट विल बी 91 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब ये रेक्टेंगल का तो एरिया तो आ गया. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फिगर में भी दिया हुआ है कि ये दो सेमी सर्कल हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम दो सेमी सर्कल इकट्ठे करते हैं तो क्या हमें एक सर्कल मिल जाएगा? अच्छा, इसका रेडियस भी हमारे पास है 3.5. ठीक है. अगर सर्कल है और रेडियस भी 3.5 है तो फिर हम एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ सकते हैं ना. ओके. सो एरिया ऑफ सर्कल इट विल बी पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और पाई की वैल्यू दी होती है 22/7. किसी किसी क्वेश्चन में दिया होगा 3.14, तो हम वहां 3.14 लगाएंगे. सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5. ओके. 7 और 3.5 को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.5. ठीक है. 22 5 जा 5 2 जा 10 1 कैरी 5 2 जा 10 प्लस 1 11. इधर से एक डेसिमल है तो हम यहां से भी एक डेसिमल लगाएंगे. मल्टीप्लाई बाय 3.5. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 385. अच्छा, इधर एक डेसिमल इधर है, एक डेसिमल इधर है. ठीक है. लेकिन ये तो हमने 0 से उड़ा दिया तो बाकी बचा एक ही डेसिमल. सो इट विल बी 38.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अभी आप एरिया ऑफ गिवन फिगर अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ गिवन फिगर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था? 91 मीटर स्क्वायर प्लस
38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 0.5 ऐसे का ऐसे आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, 8 + 1 9, 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 50% सम यहाँ पूरा होता है। एरिया आपने निकाल दिया। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी फॉर्मूला होती है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अभी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना था 20। ठीक है, 20 दिया हुआ है ना, कि 13 दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है, 20 मत लिख देना। ठीक है, 20 कहां से है? यहां से लेकर यहां तक है। ओके, सो हियर वी विल राइट नॉट 20, वी विल राइट 2 इंटू ब्रैकेट 13 प्लस, ठीक है, ब्रेथ कितना है 7, ये गलती मत कर देना। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 7 इट विल बी 20। सो 20 2 ज़ा 40 एंड पेरीमीटर है तो हम सिर्फ मीटर ही लिखेंगे। अभी देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल दिया, 40 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये जो दो सेमी सर्कल हैं, एक ये वाला एक ये वाला, यहां पर हमने निकाला था एरिया। तो अभी हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। इसमें आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2πr भी यूज कर सकते हो और πd भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 7। ठीक है, तो अगर आपने πd लगा दिया, ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, डायमीटर यहां पर दिया हुआ है 7, तो सरकमफरेंस कितना होगा 22 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ मीटर आएगा। ओके, क्योंकि स्क्वायर हमेशा एरिया में लगता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, एरिया जब हम निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, दोनों को प्लस कर दिया, पेरीमीटर एरिया ऑफ द गिवन फिगर आ गया। लेकिन पेरीमीटर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो पेरीमीटर मतलब क्या? खाली आउटर बाउंड्रीज, मतलब यहां से यूं गए, फिर ये कर्व आया, फिर ये यूं गए, फिर ये कर्व आया। ठीक है, सिर्फ बाहर की बाउंड्री हमें काउंट करनी है। ठीक है, जबकि जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे थे तो हमने ये दो भी प्लस कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में तो 2 इंटू लेंथ आ ही जाएगा। इसीलिए जब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर निकालेंगे जब भी आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो इसका जो पेरीमीटर निकाला वो कितना निकाला 40। ठीक है, फिर आपने सर्कल का जो निकाला वो सरकमफरेंस दैट इज 22 मीटर, इसको प्लस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे? दिस वन एंड दिस वन, 2 टाइम्स लेंथ दैट इज 7 + 7। ओके, 40 + 22 इट इज 16 2 मीटर माइनस 7 + 7 दैट इज 14 मीटर। 12 - 4 इट विल बी 8, 6 की जगह 5 गया था, 5 - 1 दैट इज 48 मीटर। So final statement we will write that area of given figure कितना निकला था हमारा 129.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर। और perimeter of given figure that is 48 meter. Okay, now moving ahead to question number 4. A flooring tiles has a shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. ठीक है, अभी पैरेललोग्राम की अगर आप फॉर्मूला लास्ट ईयर की अगर आपको याद हो, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी लिखते हैं यहां से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ग्राम, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल is 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ फ्लो वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो मीटर टू सेंटीमीटर का 100 स्क्वायर है, इसलिए 2 जीरो और जाएंगे, सो इट विल बी 1080, then 4 times 0, 1 2 3 4, 4 plus 1 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros. Okay, centimeter square. Therefore number of tiles required, so it will be 10808, sorry 0 not 8, by mistake I have written, divided by 240. So we'll solve this, 0 cancel. Okay, 108 and 24. Okay, तो 12 की टेबल में आएंगे, 12 9 जा 108, कितने जीरो बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 12 2 जा 24। ठीक है, 90 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 45, सो 45,000 टाइल्स। नाउ व्हाट वाज आस्क्ड, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर 45,000 tiles are required. Okay, now next question. स्टूडेंट, इस सम में ऐसा है कि अ एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके वो शेप्स बनाते जाएंगे और हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसमें एंट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, मतलब सबका हमें सरकमफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट फिगर हमारा ये दिया हुआ है, तो देखिए ये है सेमी सर्कल, ठीक है, तो लेकिन ये अलोंग विद द डायामीटर है, तो हम यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अलोंग विथ डायामीटर। लेकिन पेरीमीटर वर्ड ना यूज करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल विथ डायामीटर। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है। ठीक है, तो सरकमफरेंस अगर डायामीटर की फॉर्मूला लगाएं तो पाई डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्कल है आधा, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो ये सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया विथ डायामीटर, तो हम इसको प्लस डी कर देंगे। अभी पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, डायामीटर कितना दिया हुआ है 2.8 डिवाइड बाय 2, इसको अलग रखिए, डायामीटर को आप अलग से लिखिए। अब इसको रिड्यूस फॉर्म निकालिए, तो 7 2.8 से कट जाएगा और 2 11 से कट जाएगा, तो 2 और 22 को काटेंगे तो क्या बचेगा 11, और 7 और 2.8 को काटोगे तो क्या बचेगा 0.4। इसको सेपरेट रखिए, मिक्स मत कीजिएगा। सो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, so that is 4.4 plus 2.8. ठीक है, so this will be 8 plus 4 12,
4 + 2 6 + 1 7, that is 7.2 सेंटीमीटर। अभी देखिए स्टूडेंट, इसका सेकंड फिगर जो है, ठीक है, दिस इज दिस एंड दिस, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस इज अ रेक्टेंगल, लेकिन इसमें से ये सेमी सर्कल कटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल हम पहले ढूंढेंगे। उसकी फॉर्मूला क्या होगी, πd/2। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8/2, ठीक है। 7 इससे कटेगा, 2 इससे कटेगा, तो क्या बचेगा 11। 7 डिवाइड बाय 28 तो 4 बचेगा, लेकिन एक डेसिमल इसीलिए हम 0.4 लिखेंगे। 11 4 जा 44, लेकिन डेसिमल है इसीलिए हम 4.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये तो आपके पास आ गया। अब यहां से एंट इधर गया, मतलब 1.5 चला, यहां से एंट इधर आया तो 2.8 चलेगा, यहां से एंट इधर आया तो 1.5 चलेगा। मतलब आपने जो सेमी सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाला, उसमें 1.5, 2.8 और 1.8 ये तीनों इसमें प्लस करना रहेगा। सो अब हम निकालेंगे, सो नाउ वी विल फाइंड आउट सरकमफरेंस ऑफ गिवन फिगर। सरकमफरेंस ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एंट यहां पर डिस्टेंस चलेगा, तो वो हमने ढूंढा 4.4 सेंटीमीटर। फिर एंट यहां चलेगा, मतलब 1.5, फिर यहां चलेगा मतलब 2.8, फिर यहां चलेगा मतलब 1.5, प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर। तो 4.4 को हम एज इट इज ही रखते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। 1.5 प्लस 1.5 तो 3 हो गया, प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 + 4 12, तो 2 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सेकंड फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड फिगर। नाउ सी इन दिस फिगर, पहले एंड ऐसे चलेगा तो हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। डायमीटर कितना लेंगे, 2.8। कुछ याद आया? थोड़ी देर पहले ही हमने ये निकाला था, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। मतलब ये प्रोसेस हमें फिर से यहां रिपीट करना है, दैट इज circumference of semicircle, that is πd/2. So 22/7 multiply by 2.8 divided by 2. 2 11 जा 7 0.4 जा. So this is 4.4 centimeter. Now circumference of given figure, तो पहले ये लिखते हैं 2 + 2 और प्लस जो हमारा ये निकला वो, सो 2 + 2 + 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किस में किया, सो दैट वाज बी, दैट इज 10.2। देयरफॉर इन फिगर बी मैक्सिमम डिस्टेंस has to be traveled. Okay, so this is how our exercise number 11.1 ends. Now exercise number 11.2.